العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اور آپ امت خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ عرض کریں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اللہ علیکہ یا رسول وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ کی تشریح اور ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں اپنے تعلقات، اپنی دوستیاں، اپنے رشتے کس سے قائم کرنے چاہیے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دوستی ہر انسان کا ایک معیار ہے کہ وہ انسان کسی نہ کسی کے ساتھ رشتہ جوڑتا ہے۔ یہ ایک ایسا انسان کے اندر ایک ایسی فطرت ہے کہ وہ جہاں جاتا ہے وہ کسی نہ کسی انسان کے ساتھ، کسی نہ کسی شخص کے ساتھ وہ اپنی دوستی کو جو ہے وہ جوڑ دیتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوستیاں کرو، لیکن ایسے کہ جن لوگوں کے ساتھ تم دوستی کرنا چاہتے ہو وہ تمہیں اس دوستی میں دین کے اندر نقصان نہ پہنچائے، ایسی دوستی اختیار کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ میرا دوست نہیں ہے جو میری غلطی، جس کے ساتھ میں دوستی کروں اور وہ میری اصلاح نہ کرے، مجھے سدھارے نہ، اس سے میری دوستی بیکار ہے۔ کہا کہ میری دوستی اس انسان سے ہے کہ جو میری اصلاح کرے۔ تو اس لیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دوستی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی سے دوستی رکھتے ہیں تو وہ اس بنا پہ رکھیں کہ یہ کتنا دیندار ہے، یہ کتنا مخلص ہے، اس کے اندر کتنی دینداری ہے، اس کے اندر کتنا اخلاص ہے، محبت ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، کیا یہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے، کیا یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا یہ رزق حلال کماتا ہے یا نہیں کماتا، کیا یہ رزق حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا، کیا یہ جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اگر ان ساری چیزوں کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے رکھیں گے، اس کے بعد ہم دوستی کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوستی ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ دوستی ہمارے لیے جو ہے ایک کامیابی کا سودا ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی سے دوستی رکھو تو تین باتوں کا جو ہے یعنی خاص خیال رکھو۔ جس انسان سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو اس انسان کی کبھی غیبت مت کرو، اس انسان کی غیبت نہیں کرو، اس سے کوئی لالچ مت کرو، اور اس انسان سے کسی چیز کی یعنی ڈیمانڈ مت کرو، اور جس سے بھی آپ دوستی کرنا چاہتے ہو خالص اللہ کے لیے کرو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کسی سے اگر تم یعنی محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے محبت کرو، اور کسی سے اگر تم نفرت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے لیے نفرت کرو۔
ये नहीं है, ये भी दीन का एक उसूल है कि किसी से नफरत तो करनी पड़ेगी हमें। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, तुम अगर किसी से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए करो, और किसी से नफरत करोगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए करोगे। जो इंसान दीन से दूर है, जिस इंसान के अंदर दुनिया के तमाम यानी फजूल बातों में जो है वो इंसान अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहा, वो इंसान जो दीन के अंदर यानी दिलचस्पी नहीं रखता है, वो इंसान जो यानी लाहो लाभ यानी खेल कूद के अंदर दूसरी खुराफातों के अंदर मुलव्विस है, उस इंसान से तुम नफरत करोगे तो ये दीन का हिस्सा है। और जो इंसान नेकी की तरफ तुम्हें लेके जाएगा, जो इंसान तुम्हें जिस इंसान से तुम मिलोगे तो उसको देखने के साथ, उसके साथ चलने से आपको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद यानी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद जो है वो आएगी। अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने के लिए वो इंसान तुम्हें जो है वो अपनी तरफ राग़िब करेगा। वो कहेगा कि आओ हम दीन की महफिल है वहाँ चलें, आओ हम वहाँ किसी जगह जहाँ अल्लाह के यानी बरगज़ीदा वली हैं वहाँ उनके मज़ारों के ऊपर जो है हाज़िरी दे। किसी यानी बरगज़ीदा आलिम का कोई पैगाम है, कोई जलसा चल रहा है, कोई दीन का इज्तिमा हो रहा है, आओ हम वहाँ चलें, या बुजुर्गों की महफिल में बैठे, तो वो इंसान जो है आपको बुरे कामों से बचा रहा है। जो इंसान आपको बुरे कामों से बचाएगा वो इंसान आपका दोस्त है। जो इंसान आपको नेक रास्ते से भटका के यानी दूसरी तरफ आपको गुमराही के रास्ते पे ले जाएगा वो आपका दुश्मन है, दोस्त नहीं हो सकता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। और दूसरी बात यह है कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं, किसी के साथ हम अपना ताल्लुकात यानी बनाते हैं तो उसका खास ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं कि जब हमने दोस्ती कर ली अस्सलामु अलैकुम वालेकुम सलाम, जहाँ हम बैठ गए तो वहाँ हमने दोस्ती यानी शुरू कर दी, लेकिन जब हम चंद लोगों अपने दोस्तों के बीच में बैठते तो आपस में प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं। हम में से एक बंदा उठ के चला जाता है, हम उसकी ग़ीबत करना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान वैसा है, इसके अंदर ये कोताही है, ये कमी है, ये कमी है। ये चीज़ें जो हैं इस्लाम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये गलत बातें हैं। जब तुम दोस्त के साथ जब बैठते हो तो उसके साथ जो है इखलास के साथ चलो। अगर वो एक कदम चल रहा है तुम ये मत सोचो कि वो इंसान अगर एक कदम चलेगा तो मैं उसके साथ 2 कदम चलूंगा, नहीं, वो जितना भी चल रहा है चले या ना चले, आप अपनी दोस्ती का जो है हक निभाएं। आप किसी के साथ अगर दोस्ती करते हैं तो उसके साथ जितना हो सके आप करें। आप किसी के बारे में जो है उसकी दोस्ती के ऊपर धब्बा ना बन जाए। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में आता है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि अहया उल-उलूम में फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सहाबा कहीं यानी मदीना मुनव्वरा से बाहर तशरीफ ले जाते हैं और एक जंगल आता है और जंगल के अंदर आपने एक पेड़ देखा जिसकी मिसवाक जो है आपने बना ली थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक टहनी तोड़ी और उसके 2 टुकड़े कर दिए और 2 मिसवाक लाई, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा में जो सहाबी उनके साथ थे उनको एक टहनी दी, और एक जो मिसवाक थी वो बिल्कुल सीधी थी और दूसरी मिसवाक जो थी वो टेढ़ी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो टेढ़ी मिसवाक थी वो अपने लिए रख ली और सीधी उसको दे दी। तो सहाबी रसूल ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं आपका गुलाम हूँ, आप मुझे जो है ये टेढ़ी वाली मिसवाक जो है ये मुझे दे दें, लेकिन आप सीधी ले लें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी दोस्ती का मेयार ये है कि मैं अपने से अच्छी चीज़ दूसरे को देता हूँ। तो यही चीज़ हमें इस चीज़ का सबक देती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारा। अगर हम किसी अपने भाई के लिए, किसी दोस्त के लिए वो चीज़ पसंद करें जो हमें पसंद है, अगर हमें जो चीज़ पसंद नहीं है हम अपने दोस्त के लिए कैसे पसंद कर सकते हैं। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, इस दोस्ती का मेयार होना चाहिए कि ये दोस्तियाँ हमें कहाँ लेके जा रही हैं। आज हम अपने बच्चों की दोस्तियों के ऊपर जो है निगाह रखें। क्या जो इंसान हमारे बच्चों को कहीं दूसरे रास्ते की तरफ तो नहीं जा रहा है, वो यानी वो बच्चे हमारे जो दीन के रास्ते पे थे, माँ बाप नेक हैं, लेकिन उसकी औलाद जो है वो गलत रास्ते पे जा रही है। लेकिन इसकी असल वजह ये है कि हमने अपने औलाद को जो है, अपने बच्चों को, अपने यानी दोस्तों को के बच्चों को उसकी तरफ हमने गौर नहीं किया कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि महशर के मैदान में 2 दोस्त होंगे, जो 2 दोस्त होंगे जिनकी यानी नेकियां जो है वो कम होंगी और दोनों की तो 20-20 नेकियां कम हो जाएंगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दोस्त यानी महशर के मैदान में इधर भागता हुआ जाएगा कि कहीं
मुझे 20 नेकियां मिल जाएं कि मैं कहीं जन्नत का मुस्तहिक हो जाऊं। दूसरा दोस्त जो है उसकी भी 20 नेकियां कम है, वो भी दौड़ता हुआ कहीं नेकियां ढूंढने के लिए दाएं बाएं घूम रहा है कि कहीं ना कहीं मुझे नेकियां मिल जाएं। वो दोस्त उन आपस में दोनों दोस्तों को पता नहीं है कि क्या हमारी 20 नेकियां कम है या नहीं है। वो कभी अपनी माँ से पूछता है, कभी अपने बाप से पूछता है, कभी अपने भाई से पूछता है, अपनी बहन से पूछता है, अपनी बीवी से पूछता है। सब इनकार कर देते कि हम तुम्हें दोस्त नेकियां नहीं दे सकते। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बिल आखिर में उन दोनों दोस्तों का एक जगह में मुलाकात होती है। जब मुलाकात होती है तो वो दोस्त आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। कहा कि क्या बात है, तेरे साथ क्या मामला हुआ। वो दोस्त अर्ज करता है, ए मेरे दोस्त, मेरे पास जो है 20 नेकियां कम है। दूसरा कहता है कि मेरे पास भी 20 नेकियां कम है। तो दोस्ती का मयार देखिए। उस एक दोस्त ने कहा कि तू ऐसा कर कि मेरी वाली नेकी जो 20 नेकियां जो है तेरे कम जो है, तो ये ले ले, तू तो जन्नत में चला जा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, जब वो दोस्त 20 नेकियां लेके जन्नत की तरफ जाने लगता है, जब जन्नत के दरवाजे पे पहुंचता है तो उसके बाद उसको ख्याल आता है कि मैं कैसा दोस्त हूँ कि दुनिया के अंदर जो है जिस दोस्त के लिए मैंने इतना काम किया, नमाज पढ़ते थे तो इकट्ठे पढ़ते थे, रोजा रखते थे तो इकट्ठे रखते थे, कुरान पाक की तिलावत होती थी तो इकट्ठे होती थी, हम कोई भी नेक काम करते थे तो एक जगह होते थे। आज मैं कैसा दोस्त हूँ कि जब मैं जन्नत में जा रहा हूँ अपने दोस्त का ख्याल नहीं रख रहा हूँ। वापस आया रोता हुआ, और जब फरिश्तों ने पूछा कि ये क्यों रो रहा है, अल्लाह तआला ने फरिश्तों से पूछा कि ये क्यों रो रहा है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, इसने जो है इसकी इस चीज़ के ऊपर इसको दुख है कि मैंने अपने दोस्त से 20 नेकियां लेके जन्नत में जाने के लिए तैयार हो गया। उस मेरे दोस्त का क्या होगा जिसने मेरे साथ नमाजें पढ़ी थी, जिसने मेरे साथ जो है जिक्र व अस्कार किया था, जिसने मेरे साथ जो है तमाम नेकियों में मेरे साथ रहा। आज वो जहन्नम में चला जाएगा, मैं जन्नत में चला जाऊँ, मुझे गवारा नहीं। वो अल्लाह से अर्ज करता है कि या अल्लाह, अगर ये जन्नत में जाए तो मुझे भी, मेरे दोस्त को भी मेरे साथ मेरे जन्नत में जो है साथ ले जा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत जो है वो जोश में आती है, और उस दोस्त की जो है आजिज़ी और इनकिसारी की वजह से जो अल्लाह की बारगाह में उसने रो रो के अर्ज किया कि मेरे दोस्त को मेरे साथ जन्नत में भेज दिया जाए, तो अल्लाह को ये आदत, ये अदा उसकी इतनी पसंद आई कि उस दोस्त के साथ जो है वो जन्नत में जो है भेज दिया। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, किसी से भी दोस्ती रखेंगे तो हम अल-हुब्बु फिल्लाह वल-बुग़्ज़ु फिल्लाह, किसी से नफरत करेंगे तो अल्लाह के लिए नफरत करनी है, किसी से दोस्ती करेंगे तो अल्लाह के लिए हमने दोस्ती करी है। अगर हम दुनियावी तौर से हम सोचें कि नहीं कि हमें फलां इंसान से हम दोस्ती करें जिससे हमें फ़ायदा होगा, जिससे हमें पैसे मिल जाएंगे, जिससे हमें हमारे दुनियावी मामलात जो हैं वो उससे हल हो जाएंगे। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये दोस्ती दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए। दोस्ती ऐसी हो कि हमें हर चीज़ का जो है इखलास होना चाहिए। दोस्ती में बहस नहीं करनी है, दोस्ती में ग़ीबत नहीं करनी है, दोस्ती में लालच नहीं होना चाहिए। जब ये चीज़ें हमारे दिल के अंदर होंगी, हम दुनिया में भी कामयाब होंगे, आखिरत में भी कामयाब होंगे। आजकल की दोस्ती ये है कि अगर हम किसी के साथ अच्छाई करते हैं तो हम कर देते हैं अच्छाई, लेकिन जब हमारे ताल्लुकात बिगड़ते हैं तो फिर हम एक चाय का कप भी उसको याद करा के छोड़ते हैं कि मैंने फलाने टाइम में तुझे चाय दी थी, मैंने फलाने टाइम में तेरा किराया दिया था, मैंने फलाने टाइम में तुझे ये चीज़ खिलाई थी। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, ये इस्लाम के अंदर दोस्ती का मयार नहीं है। इस्लाम के अंदर दोस्ती का मयार ये है, किसी से अगर तुम मोहब्बत करो तो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक मोहब्बत करो। जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है दोस्ती की थी। जब अल्लाह के प्यारे सहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का विसाल का वक्त आया, तो जब आप विसाल फरमा गए, उसके बाद आपको कहा, जब दफनाने का टाइम आया तो आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के पास ले गए। कहा कि आपका दोस्त सिद्दीक़ अकबर जो है आपके पास आना चाहता है। मज़ार अक़दस से भी आवाज़ आई थी कि मेरे सिद्दीक़ को मेरे पास आने दो। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल करना है कि आपस में उन लोगों के साथ दोस्ती करनी है जो हमें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लेके जाएं। उन लोगों से बचना है जो हमें शराब से बचाएं, जो हमें शराब की तरफ लेके जाएं, जो हमें बुरे कामों की तरफ मुलव्वस करें, जो हमें ज़नाकारी की तरफ मुलव्वस करें, बेहयाई की तरफ मुलव्वस करें। उन चीज़ों की तरफ से हमें उस दोस्त के से बचना है जो हमें बुराई के रास्ते पे लेके जाएगा, जो नेकी की तरफ लेके जाएगा। उस दोस्त को अपना दोस्त समझो, जो बुराई की तरफ लेके जाएगा वो दोस्त नहीं है, वो आपका दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। मेरी बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे कहने में कोई गलती हो अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए।